Two documents in You are one frame. you are already familiar. यस सर, थोड़ा पहले Okay, कभी okay, किया था कंप्यूटर okay, पे, okay, बेसिक जब किया था। हाँ जी। okay. Only one student with familiar this topic. एक ही स्कॉलर familiar हैं अभी। ये तो this is the basic experiment. ये तो आप those students are the belong to computer application and computer science, वो ऑलरेडी जानते होंगे सर। चलो, अभी भी स्टूडेंट्स इतने नहीं आए हैं। We use the, yeah, when we create the multi-mat document and then share the a multiple person at a time, ठीक है ना? तो using of the mail merge, उसमें means that multiple document means some different format, just like of the letter, notice, invitation, certificate, ठीक है ना? By combining, ठीक है? तो the definitions of the mail merge. Mail merge is the future of the Microsoft Word. ओके, यूज टू द क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट। जब एक मल्टीपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और वी विल यूज द शेयर ऑफ द मल्टीपल शेयरिंग विद द एनी पार्टिसिपेंट्स। ओके, जस्ट वेट। Text or data source means that some of the data source are the use variable data link, name, address, roll number, just mention of the field you are the a database. When you create just the a letter, notice, invitation, certificate by the using of the sharing of the multiple participants, ठीक है ना? तो few steps we are the using, ठीक है ना? When we the use of the creations of the mail merge the document through the email merge of the document. The basically just we will discuss the firstly how many step are the use of the mail merge during the mail merge. First step is the a prepare the main document. Just wait on the I am sharing of the screen and we will perform the just, ठीक है ना? How to perform the just mail merge, यानी हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं ये जस्ट हम ये डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज द ए प्रिपेयर द मेन डॉक्यूमेंट। पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। फर्स्टली वी विल ए लिटिल ब्रीफ with you, just after that we will shift it to ठीक how to create of the a mail merge, ठीक है ना? How, so first is the a prepare the a main document. Main document means that is the open Microsoft Word. Second is the create a new document letter, just like of the a letter, notice, invitations. You want to the a choose according to, ठीक है ना? You will prefer to the a send you the a letter. You will send you the notice. You want to the a send invitations. You want to the a send after then certificate. ठीक है ना? You will choice. You according you will choice if you want to the just send according. Second step means that start mail merge. Start mail merge means that, or third means that select recipient's data source. This is the important part is the a third point. Okay, select recipient data source. Now is the a fourth step is the a insert merge field. This is the very important. When we the inserting, after then you will in the maintain of the a field. After maintain of the a field, you will perform, you will send of the a just inserting part of the different participants. So they will shift it to the a another step is the insert in the a merge field. After then step is the 5 preview the result, and this is the last step is the a finish
the merge document. तो आई विल शेयर द स्क्रीन, ठीक है ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना। अब उस पे देखते हैं कि क्या किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं जस्ट, ठीक है ना। एंटर स्क्रीन, दिस इज द फर्स्टली यू विल प्रिपेयर द टू डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। वन डॉक्यूमेंट अगर यू वांट टू द ए चूज अकॉर्डिंग, सपोज हमने मैंने एक कोई भी एक क्या किया कि ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ओपन वर्ड फाइल हमने ओपन कर लिया, ठीक है ना। सेलेक्ट यूज द ए करंट डॉक्यूमेंट, देन इज द ए क्लिक एंड द रिसेंट्स, ठीक है ना। एक मैंने जस्ट अभी यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखिए जस्ट दिस इज द एक वर्ड फाइल हमने यहाँ पे ओपन कर दिया, दिस इज द वर्ड फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट। एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, सपोज वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने से ऑलरेडी जस्ट इन द मेंशन ऑफ द ए सम मैटर, ठीक है ना। एक मैटर मेंशन किया हुआ, दिस इज द ए लेटर, ठीक है ना। एक ये अपॉइंटमेंट लेटर है, जस्ट दिस इज द अपॉइंटमेंट लेटर, द सेंड ऑफ द ए डिफरेंट पार्टीशंस, ठीक है ना। वी विल सेंड या वी वांट द सेंड ऑफ द ए द डिफरेंट पार्टीशंस, ठीक है ना। अब दिस इज द ए प्रोसेस, मेन प्रोसेस हाउ टू यूज ऑफ द ए मेल मर्ज, किस तरह से हम मेल मर्ज यूज करते हैं देखिए जस्ट। अब जस्ट फर्स्टली क्लिक द मेलिंग टैब, ठीक है ना। यहाँ पे एक मेलिंग हमारे पास है, मेल्स यहाँ पे टैब है हमारे पास, दिस इज द जस्ट एनवलप labels means that go to the start mail merge, this is the go to the start mail merge, you want to the just select of the a letter, अगर लेटर की फॉर्म में आप ऐड करना चाहते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि you want to the send through the mail, ईमेल की फॉर्म में सेंड करना चाहते हो तो सेलेक्ट यू द जस्ट द मेंशन ऑफ द ए डिफरेंट फॉर्मेट, ये हमारे फॉर्मेट है, मींस दैट ए लेटर है, ईमेल है, एनवलप्स है, ठीक है ना। जस्ट सेलेक्ट ऑफ द एनवलप्स एंड मींस दैट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एनवलप साइज, सेलेक्ट ऑफ द एनवलप साइज, ठीक है ना। यू वांट टू द चूज अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना। आप कुछ भी चूज कर लिए, यहाँ पे आपको सपोज करो एक डायरेक्टरी सेंड करनी है, यू वांट टू द ए सेंड ऑफ द ए डायरेक्टरी, यू वांट टू द सेंड ऑफ लेटर, यू वांट सेंड टू द ए थ्रू द ईमेल्स, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या सिलेक्ट किया है, सपोज करो कि वी वांट टू द ए सेंड ऑफ द ए लेटर, एक लेटर को सेंड करना है, हमने यहाँ पे ए सेलेक्ट ऑफ द ए लेटर, एक लेटर ही सेंड किया है जस्ट, ठीक है ना। मेंशन ऑफ द ए मैटर ऑफ द लेटर, ये हमारे पास क्या है, एक लेटर का एक मेंशन हमने किया गया। अब नाउ गो टू द स्टार्ट मेल मर्ज एंड जस्ट वी यूज द ए लास्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, क्लिक ऑफ द जस्ट and found to the just select document mail merge, open the just tab and the select document, this is the what type of the document are the a working on। ऑलरेडी हमने क्या सिलेक्ट किया है, लेटर। अब लेटर पे मींस दैट लेटर send letter in the group of the people, you can just here, this is the a bibliography in the a mentioned here। now when we the use of the step 1 to 6, now we follow the a step 1 to 6, तो हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप विल बी प्रोसीड, फर्स्ट स्टेप हम प्रोसीड कर रहे हैं, गो टू द ए इज नेक्स्ट मींस दैट स्टार्ट डॉक्यूमेंट। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट किया। अब सेकंड स्टेप मींस दैट हमारी सेकंड स्टेप क्या है, स्टार्ट मेल मर्ज, मींस दैट गो टू द मेल मर्ज, क्लिक स्टार्ट, क्लिक एंड चूज द डॉक्यूमेंट टाइप। अब डॉक्यूमेंट टाइप हम यहाँ पे क्या चूज कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने चूज कर लिया, लेटर चूज कर लिया है। अब रेसिपिएंट्स, ठीक है ना, सिलेक्ट द रेसिपिएंट डाटा सोर्स, डाटा सोर्स मींस दैट आपके डाटा सोर्स क्या है कि टाइप ऑफ न्यू लिस्ट है हमारे पास, लेटर नेम एड्रेस, ठीक है ना। अब यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब है यूज द ए करंट डॉक्यूमेंट, यू वांट टू द ए चूज ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, आप स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट यूज करना चाह रहे हैं, ये स्टार्ट फॉर द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट आप यूज करना चाह रहे हैं। तो हमने सेलेक्ट ऑफ द ए फर्स्ट ए टाइप, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट टाइप सेलेक्ट करे, यूज ऑफ द ए करंट डॉक्यूमेंट। नाउ यू द गो टू द प्रोसीड ऑफ द ए सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप इज द ए select of the a recipients, select of the a recipient means that a type of new list, use an existing list, select from the outlook concept type of new list, you want to the choose according,
ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग आप ये चूज कर सकते हैं कि सिलेक्ट फ्रॉम द आउटलुक कंटेंट्स आप करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ न्यू लिस्ट आप बनाना चाह रहे हैं, टाइप ऑफ न्यू लिस्ट यू वांट टू द ए क्रिएट ऑफ द टाइप ऑफ न्यू लिस्ट। अगर यहाँ पे आप यू वांट टू द ए क्रिएट ऑफ न्यू टाइप ऑफ लिस्ट, आप यहाँ से भी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज टाइटल, दिस इज द ए मेंशन ऑफ द ए डिफरेंट फील्ड, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस, ठीक है ना, एड्रेस, सिटी, आफ्टर देन स्टेट, जिप कोड, कंपनी, दीज आर द ए मेंशन ऑफ द ए मल्टीपल फील्ड, ठीक है ना। अकॉर्डिंग यू वांट टू द चूज, सपोज करो कि आपने फर्स्ट 5 या 6 फील्ड आपने चूज करे हैं अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है ना। आप कितना अपना एक डाटाबेस है, कितनी जस्ट उसमें एक लेटर में एड्रेस क्या 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 एक जस्ट मेंशन करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू यू वांट टू द चूज इन द मेंशन ऑफ द ए क्रिएट लिस्ट। नाउ दिस इज द ए टाइप ऑफ न्यू लिस्ट। अब बेसिकली जस्ट हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि वी विल ऑलरेडी जस्ट, वैसे अगर हम एक मल्टीपल है तो मल्टीपल के लिए हम जो डेटाबेस है, डेटाबेस वी विल प्रीफर द एक्सेल डेटाबेस, ठीक है ना। एक एक्सेल शीट बनाएंगे हम, जैसे सपोज हमने क्या कर रखा है कि एक एक्सेल शीट बना रखी है, वी ऑलरेडी द ए मेंटेन ऑफ द ए एक्सेल शीट, एक एक्सेल शीट हमारे पास ये है, दिस इज द एक्सेल शीट, दिस इज द विजिबल, दिस इज द विजिबल, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये मीन्स दैट ये एक्सेल शीट है, एक्सेल शीट में the mention of the A4 field, first field is the a name, company, city and state, already in the mentioned है, आप ही के नेम है, ये किसी के रैंडम मैंने अटेंडेंस से आपके नेम पिक किए हैं, तो जस्ट एक रैंडम है हमारे पास, कंपनी है, सिटी है, तो ओनली द मेंशन ऑफ द A4 फील्ड, ठीक है ना। अब ये जस्ट हमारे पास these are the a participants, these are the participants, we want to the a these participant are the is sent to through the a mail words, ठीक है ना। अब हम ये जस्ट ये करना चाह रहे हैं, ओके। अब यहां से नाउ यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट, नाउ गो टू द ए नेक्स्ट, ट्राई टू यूज द लेटर, ठीक है ना। अब मीन्स दैट नेक्स्ट यू लेटर मीन्स सेलेक्ट ऑफ द ए ब्राउजर, ब्राउजर मीन्स दैट सेलेक्ट ऑफ द रेसिपिएंट्स, रेसिपिएंट का मतलब है कि आपकी फाइल है कहाँ पे, जस्ट सेलेक्ट यूर द ए फाइल, आप अपनी फाइल सेलेक्ट करो जो ऑलरेडी आपने PST class mail bus letters, okay, select your the file, open, after then open, now अब यहाँ पे जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो मीन्स दैट इज सोर्स ऑफ योर फाइल, ओपन योर द सोर्स योर फाइल, नाउ विद द ओके, जैसे ही ओके करोगे मीन्स दैट इज द ए मेंशन, मेंशन मीन्स दैट द दिस इज द ए लिस्ट ऑफ द रेसिपिएंट दैट विल बी यूज ऑफ द मेल वर्ड्स, ये एक हमारे पास क्या ओपन हो गया, ये एक दिस इज द लिस्ट ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट की लिस्ट आई है। अब अकॉर्डिंग टू अगर आप सपोज करो कि यू वांट टू द ए चेंज, यहीं पे आपको चेंज करना है, यहीं पे डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, दिस इज द ए ऑप्शंस ऑफ द एडिट। अगर सपोज करो कि यू वांट टू द अनसेलेक्ट, ठीक है ना, अब इसे अनसेलेक्ट करना है, नाउ क्लिक द ओके, ओके, जस्ट नाउ दिस इज द perform the next, continue, now write, this is the a next is the write your the letter, write your letter means that address in the block of the generate of the electrons। अब जैसे ही हमने यहाँ पे next किया तो go to the insert merge field, आप जैसे ही merge field में जाए, यहाँ पे गए, जैसे ही go to the insert merge field, first field is the a name, after then second field is the a company, automatically are the reflect of the insert field, ठीक है ना, जो भी आपने मेंशन किया है कि सपोज करो सिटी, स्टेट, ठीक है। नाउ इज द नेक्स्ट इन द ए प्रीवियस नेक्स्ट। अब नाउ गो टू द इंसर्ट, इंसर्ट मींस दैट सपोज हमें क्या करना है कि यहाँ पे सपोज वी वांट टू द यूज ऑफ द नेम, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे नेम यूज करना है, सपोज नेम यूज करना चाह रहा हूं, तो गो टू द इंसर्ट ऑफ द नेम, ठीक है ना, अंजलि आगे। आफ्टर दैट द एड्रेस, एड्रेस में हमारे पास दिस इज द ए सेकंड फील्ड, चेक योर द ए सेकंड फील्ड, कंपनी मींस दैट ए कंपनी, सेकंड फील्ड इज द ए कंपनी, TCS, नाउ इज द ए मेंशन ऑफ द ए थर्ड फील्ड, थर्ड फील्ड, चेक योर द ए थर्ड फील्ड,
थर्ड फील्ड, check your the a third field is the a city, यहाँ पे सिटी आ गई है YN यमुनानगर। नेक्स्ट इज द a mention of the, ठीक है। अब नेक्स्ट फील्ड स्टेट, mention of the state in the मध्य प्रदेश। सपोज you want to the agent mention of the a, select you the inserting field, after then आपको लेटर के बीच में भी जैसे हमने यहाँ पे कहा है कि डियर कैंडिडेट मींस दैट यू वांट टू द इंसर्ट ऑफ द ए नेम दिस पार्टिसिपेंट्स, आप यहाँ पे भी ये नेम मेंशन करना चाहते हैं तो मींस दैट डियर सेलेक्ट आफ्टर देन इंसर्टिंग नेम अंजलि आ गया। सपोज करो कि ज्वाइनिंग डेट इज नॉट इन द ए मेंशन, नॉट मेंशन ऑफ द ए फील्ड ऑफ द ए ज्वाइनिंग डेट, मींस दैट सपोज वी वांट टू द ए मेंशन ऑफ द ए लोकेशंस, ठीक है ना। हम इसकी यानी अंजलि की लोकेशंस यहाँ पे, दिस इज द ए सेलेक्ट ऑफ द ए लोकेशंस मींस दैट सेलेक्ट ऑफ द ए सिटी YN, ठीक है ना। अब दिस इज द ए मेंटेन इन द वन लेटर, अब हमने एक ही लेटर में एक बार एक्सरसाइज की है जस्ट। अब चेक द ए preview to the another participants, now go to the a recipient means that now is the check, next after then फरहान का जस्ट डाटाबेस में, आफ्टर देन थर्ड इज द ए रिसिपेंट फॉर नरेश कुमार त्यागी, उनकी जस्ट कंपनी में नेम है गूगल, ठीक है, मींस दैट एक सिटी है KU की, स्टेट इज द ए महाराष्ट्र, आफ्टर देन नेक्स्ट इज द राकेश कुमार, नेक्स्ट इज द जस्ट, ठीक है ना, राकेश कुमार मलिक, नेक्स्ट इज द ए राकेश कुमार मलिक, ठीक है ना, राकेश कुमार मलिक, मनोज कुमार, ठीक है ना, डिफरेंट फील्ड मेंशन हुआ होगा इस तरह से, मनोज कुमार, शिवम, ठीक है ना, विशाल, आफ्टर देन विशाल, ठीक है ना। मे भी हो सकता है कि एक से ज्यादा हमने नाम यूज कर रखे हो, अखिल गुप्ता, आफ्टर देन दिनेश कुमार सिंह, आफ्टर देन रिक सिंह शरीता, आफ्टर देन, ठीक है ना, दीज आर द 19 recipients are the mention in your the Excel फाइल, ठीक है ना। आपकी एक्सेल फाइल में इतने रिसिपेंट थे। अब सपोज करो कि हमें देखो हमें एक लेटर पे एक्सरसाइज करनी पड़ी, आफ्टर देन दूसरे जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द ए रिसिपेंट है, सपोज वी वांट टू द ए सेंड ऑफ द ए रेस्ट ऑफ द रिसिपेंट्स, ठीक है ना, हमें ये सेंड करना है तो जस्ट एक ही बार हमने यहाँ पे क्या किया है कि जस्ट ओनली द ए क्रिएट ऑफ द ए वन लेटर, यानी क्रिएट ऑफ द ए मेंशन ऑफ द फील्ड अकॉर्डिंग टू द ए वन लेटर, after then they reflected to the a rest of the a letters, rest of the letter, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब सपोज करो कि you want to the a just suppose you go to the a finish merge, go to the a finish merge में you want to the a print means that all documents, अगर if you want to the a print of the all document at a times या current document, select of the a current document या from, आप कहां से कहां तक करना चाहते हैं, सेलेक्ट योर द ए पेज नंबर, सपोज करो कि आपने सपोज करो कि फर्स्ट टू, आफ्टर देन यू सेलेक्ट ऑफ द ए 10, इतने ही रिसिपेंट्स चाहिए आपको, यू वांट टू द जस्ट इन द इतने ही रिसिपेंट प्रिंट करने हैं तो यहां से हम यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आफ्टर देन तो दिस इज द ए मर्ज ऑफ द ए प्रिंट, यानी प्रिंट लेने के लिए आफ्टर देन ऑल, अगर यू वांट टू द चूज ऑफ द प्रिंट ऑफ द ऑल एट ए टाइम्स, ठीक है ना, एक ही टाइम में आपको प्रिंट करना है, या एक टाइम में जस्ट हमें सपोज करो कि यहाँ पे एक मेलिंग करनी है तो दिस इज द ए, आफ्टर देन गो टू द ए सेंड मेल मर्ज, सेंड, आफ्टर देन सेलेक्ट ऑफ द, दिस इज द ए मेंशन ऑफ द ए फील्ड, कंपनी नेम, ठीक है ना, दिस इज द ए सब्जेक्ट, you want to the a mention of the a subject, after then the mailing format and the a current document from, after then okay, ठीक है ना। तो you want to the a choose according of the types, edit, suppose करो कि you want to the edit of the a this document individual, you want to the just edit, after then go to the a current record, आप current record को edit करना चाहते हो तो from कहां से कहां तक edit करने चाहते हैं, select of the a from to, आफ्टर देन, ठीक है ना, दिस इज द ए सेंडिंग ऑफ मेल। तो दिस इज द ए प्रोसेस हाउ, दिस इज द ए प्रोसेस टू क्रिएट ऑफ द मेल मर्ज, ठीक है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं कि मेल मर्ज को एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए हाँ, इतना इतना जस्ट एक कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स बहुत एक्सपेरिमेंट है। आप यहाँ पे जस्ट इधर डिफरेंट टैप यू द मेंशन ऑफ द डिफरेंट टैप, सपोज करो कि स्टार्ट ऑफ द मेज, सेलेक्ट ऑफ द रेसिपिएंट, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ से यूज किया है। अब देखो ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे फाइंड द रिसिपिएंट, टॉप पे फाइंड द रिसिपिएंट, फाइंड द रिसिपिएंट, यहाँ से भी फाइंड द रिसिपिएंट्स, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, यू वांट टू द सेलेक्ट ऑफ द ए फाइंड रिसिपिएंट्स, ठीक है ना। आफ्टर देन ये रूल्स हैं हमारे पास, दिस इज द ए मेंशन ऑफ द ए सम रूल्स, परफेक्ट, दिस इज द मेंशन ऑफ द ए सम रूल। मैच फील्ड, सपोज करो कि यहाँ से अगर आप अपने फील्ड को मैच करना है, ठीक है ना, यू वांट टू द यूनिक आइडेंटिफायर्स, ठीक है ना, नेम ऑफ द कंपनी, सिटी, हमारा ये फील्ड है। सपोज टाइटल हमारे पास ये टाइटल मैच है, मिडिल नेम, आफ्टर देन यू वांट टू द इंसर्ट ऑफ द मिडिल नेम, लास्ट नेम। अभी तो जस्ट हमने यहाँ पे एक ही नेम मेंशन किया है। अगर आप सपोज करो फर्स्ट नेम, यू वांट टू द ए मेंशन ऑफ द फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो सेलेक्ट टू अनदर एंड चेंज अकॉर्डिंग टू सफिक्स, मींस दैट यहाँ से आपको ये करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं कि अपने फील्ड को मैच कर सकते हैं। दिस इज द ए मैचिंग ऑफ द ए फील्ड, रूलर मैच फील्ड जिसे जस्ट कहते हैं। गेटिंग लाइंस, अगर सपोज करो कि यहाँ पे गेटिंग फॉर्मेट्स, आप यूज फॉर्मेट करना चाहते हैं, ज्वाइन ऑफ द जस्ट, ठीक है ना, गेटिंग लाइन ऑफ द इनवैलिड रेसिपिएंट्स, अगर आपको सपोज करो कि लग रहा है कि इनवैलिड मैटर लग रहा है तो चेंज द दिस, ठीक है ना, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं मैच फील्ड, और मैच फील्ड के अकॉर्डिंग आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द वेरी इजी एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, बहुत एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट है, बहुत एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, और दिस इज द ए पावरफुल, ठीक है ना। अगर सपोज करो कि हमें आई थिंक बहुत सारे आपके जितने भी हमारे पास यहाँ पे स्कॉलर्स होंगे, ऑलरेडी स्कॉलर्स क्या सभी टीचिंग फील्ड से होंगे। अगर सपोज करो कि यू वांट टू द सेंड ऑफ द रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर स्टूडेंट, ठीक है ना, तो आप अपने अगर उनके रिपोर्ट कार्ड भेज रहे हो जस्ट, तो दिस इज द जस्ट एक इजी प्रोसेस टू सेंडिंग ऑफ द ए मल्टीपल रिसिपिएंट एट ए टाइम्स, ठीक है ना। हाईलाइट, दिस इज द हाईलाइट, यू वांट टू द हाईलाइट, अगर आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं कुछ फील्ड को, हाईलाइटिंग द ए मर्ज फील्ड, सपोज करो कि एक मेंशन हम हाईलाइट करते हैं ना कि दिस फील्ड इज द हाईलाइटेड, ठीक है ना, एक विशाल विशाल वेस्ट, दिस इज द हाईलाइटेड ए फील्ड, आफ्टर देन तो ओके, यू आर द गेटिंग। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। So I was having a doubt that, यस, like you explained now, that if we want to edit something, we have to write from and to. So from like in the from and to column, we have to write the words or we have to write the line numbers to which we have to edit. you have to edit of the a word, Okay, sir. you don't the select of the a line, suppose करो कि you have to edit only the word, okay, आप इसे करके देखिए जस्ट, जी sir. you will perform just, अब मुझे कौन करके दिखाएगा। आप पहले दो डॉक्यूमेंट, you will prepare only two document, firstly you will prepare to word document, after then you will prepare to the a excel document, means that of the a database, यानी मीन्स दैट हमें सेकंड क्या हमें यूज करना है कि सेकंड वी विल जस्ट इधर प्रिपेयर द ए पार्टिसिपेंट्स लिस्ट, पार्टिसिपेंट लिस्ट की एक प्रिपेयर करो। अगर आप ये चाह रहे हो, सपोज करो कि आप यही चाह रहे हो कि मुझे एक्सेल से नहीं करना है, सपोज आप ये चाह रहे हैं कि मुझे एक्सेल से नहीं करना है, ठीक है ना, अवॉइड एक्सेल करना है, तो अवॉइड एक्सेल का मतलब है कि अगर यहाँ पे भी एक आप लिस्ट यहाँ मीन्स दैट एक रिसिपिएंट लिस्ट यहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना, रिसिपिएंट लिस्ट यहाँ पे एडिट ऑफ द रिसिपिएंट, ये सिलेक्ट ऑफ द रिसिपिएंट्स, टाइप ऑफ न्यू लिस्ट, क्रिएट ऑफ द न्यू लिस्ट, यहाँ से भी एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। बट हम ये इजिली सी थोड़ा सा ये मानते हैं कि जस्ट एक्सेल इज द वेरी
अगर एक्सेल से हमें एक डाटाबेस मेंटेन करते हैं तो दिस इज द ए मींस परफेक्ट ऑफ द डाटाबेस, हमें बार बार ऐसा नहीं है कि बनाना पड़ जाए। ठीक है, चल अब करिए। कौन करेगा? अमीशा, करिश्मा, मनीषा? आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Hello. हाँ, Yes, sir. आप एक बार सर एक बार ट्राई करिए, ट्राई कीजिए आप। सर मुझे एक डाउट है। हाँ बताइए। सर हाँ, मीन्स हम मेल मर्ज को इसलिए यूज कर रहे हैं ना कि हमने जो एक लेटर बनाया है या फिर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, तो हम एक साथ में सभी अपने रिसिपिएंट को सेंड कर सकते हैं। यस यस यस। ओके, हाँ तो सर हाँ, अगर हमने जैसे वो एक्सेल शीट, हाँ आपने जो एक्सेल शीट बनाई थी उसमें हमने नेम लिखा है, सिटी लिखा है, स्टेट लिखा है, उसमें हमने actually ईमेल you आईडी नहीं want to लिखी। the actually you want to the choose according to multiple field। ऐसा नहीं है कि मैं मेंशन किया है, आप कितने भी फील्ड मेंशन कर सकते हो, कितने भी फील्ड मेंशन है। रिक्वायरमेंट ऑफ द ए पार्टिसिपेंट, ठीक है ना? ठीक है, आपको हम जो लिस्ट कुछ भी लिख सकते हैं जैसे हाँ, लेटर की रिक्वायरमेंट है आपको। लेटर की सपोज करो कि एड्रेस मेंशन करना है आपके लेटर में, या मेल में आपको एड्रेस ठीक है मेंशन करना है, कंपनी नेम मेंशन करना है, ठीक है ना? आप क्या भेजना चाह लेटर भेजना चाह रहे हो, लेटर किस चीज का लेटर भेजना चाह रहे हो, उसमें क्या फील्ड मेंशन करने ठीक है हैं, तो मेंशन अकॉर्डिंग आप मेंशन कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आप फील्ड मेंशन कीजिए। चूज द अकॉर्डिंग ऑफ फील्ड। आप कितने भी लगा लीजिए, उसमें मल्टीपल फील्ड, नोट ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मान द लो हमने एक। मल्टीपल हाँ फील्ड लगाई, हाँ फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल फील्ड लगा दी, जैसे आपने 4 फील्ड लगाई थी, नेम एंड आई थिंक एड्रेस, सिटी, ऐसे आपने 4 फील्ड लगाई थी। मैं मान लो यस मैंने यस 5 या 6 फील्ड लगा ली। यस इट्स ओके, लेटर भी यस, प्रिपेयर हो गई मेरी। अब मुझे उस ठीक है लेटर को किसी आगे मुझे मेल करना है, तो हाँ। मेल आईडी मींस कहाँ फिल करनी है, मींस क्या करना है मेल आईडी का कुछ लेटर, मुझे वहां तक मुझे सारा स्टेप समझ आया कि ऐसे ऐसे नहीं, एक्सेल शीट से हमें ये तो डेटा जस्ट हम ओनली जस्ट हमने क्या किया है कि एक जस्ट हमने क्या कर रखे हैं कि मेल मर्ज द माई यूज हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट के लिए क्रिएट करते हैं, जैसे हमें एक लेटर बनाना है मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के लिए भेजना है। अब जैसे आपने सपोज करो कि आपने मेल करनी है, हाँ सपोज हाँ, करो यही मेरा कि क्वेश्चन है। you want to the mail of the a multiple participants, आप मल्टीपल हाँ पार्टिसिपेंट्स को मेल करना चाहते हो, तो यस मीन्स दैट इज द ए सेलेक्ट ऑफ द ए मेल आईडी टू एवरी पार्टिसिपेंट्स। आप तो सिलेक्ट करोगे ना, मेल आईडी तो लोगे ना। ये हाँ मैं तो वही जस्ट पूछ रही हमने हूँ, एक मेल आईडी। डॉक्यूमेंट हाँ ओनली फॉर ओके द मेंटेन ऑफ द ए डॉक्यूमेंट, एक हमने एक डॉक्यूमेंट मेंटेन किया है, जस्ट एक बनाया आफ्टर देन। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग बना रहे हैं, इसका मेन एजेंडा ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि जस्ट एक लेटर मेंशन किया, अब गो टू द ए शिफ्ट टू द ए अनदर पार्टिसिपेंट्स, अब उसके लिए भी हम सारी इंफॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, अलग अलग, ऐसा नहीं ठीक है। हाँ मैं समझ गई। ठीक है ना? तो मतलब ऐसा नहीं, हमारी लेटर सभी के लिए बन जाएगी, मतलब एक सभी मुझे के लिए बन बार जाएगा। बार हाँ बार बार करने की हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब यस सभी के लिए यस बन यस जाएगी। ओके यस हाँ। और ठीक है। अगर मुझे इकट्ठा सभी को मेल करना हो, फॉर एग्जांपल मेरी सेपरेट सेपरेट लेटर हाँ प्रिपेयर हो गई है, हाँ ठीक है, हाँ, अकॉर्डिंग टू यू आप एक मैंने लेटर बनाना जैसा। बनाइए, आप एक लेटर ठीक है। बनाइए, ठीक है ना? हम्म फिर मैं गाइड करता हूँ आपको, ठीक है ठीक ना? है सर, आई विल हाँ, प्रिपेयर। यू विल क्रिएट ऑफ द ए लेटर, ठीक है ना? चलो भाई, आपके पास ओनली यस सर, 5 या 10 मिनट है। क्लियर सर। आप अपना एक एक्सेल शीट बना लीजिए, आप जो भी चूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? आप आप उसमें से ही लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं या एक अलग से करना चाह रहे हैं, तो सिलेक्ट ही होगा। एक अपना एक्सेल शीट बनाइए, एक लेटर बनाइए, आफ्टर देन 5 मिनट है आपके पास, 5 या 10 मिनट है, ठीक है ना? वी विल स्टार्ट आफ्टर 5 और 6 मिनट, ओके? Okay, sir.
स्क्रीन शेयर करो, प्लीज शेयर योर द स्क्रीन। सर मैं भी फोन पे यूज कर रही हूँ, लैपटॉप मैंने भी ऑन किया, उस पे वर्क कर रही हूँ सर अभी। कोई वो नहीं कोई वैसे नहीं शेयर कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। शेयर मैं फोटो ऐसे कितना अच्छा शेयर करती हूँ आपको ना। भावना आप कीजिए आप प्लीज, ठीक है ना। मैं अदर सर करिश्मा, ये मैं स्क्रीन नो 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 करिश्मा, यस सर। करिश्मा प्लीज शेयर योर स्क्रीन। सर मैं मोबाइल यूज कर रही हूँ, बट मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ। ऐसे कैमरा ऑन करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि इसमें माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ओपन ही ना होगा। गिव मी 1 सेकंड सर। मनीषा, मनीषा, Yes, sir. मनीषा प्लीज शेयर योर स्क्रीन, डू फास्ट। Okay, sir. करिश्मा पहले आप कर रहे हो ना? नहीं मैम, आप कर लीजिए। मेरा ये अभी लैपटॉप में कर रही हूँ इधर, क्योंकि लैपटॉप नहीं है, मैं कंप्यूटर में कर रही हूँ। डेस्कटॉप पर अटैच नहीं हो रहा इससे। बहन पहले आप कर दो ना, आपका देख के मैं दिखा दूंगी, फिर मेरे में गलती हुई तो। मनीषा नहीं, डोंट वरी मनीषा, अगर गलती हुई तो थोड़ा सा ठीक है ना, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके सर। आप कीजिए मनीषा, मनीषा कीजिए आप, प्लीज डू फास्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैंने किया तो है, बट मेरे में ज्यादा अपडेट नहीं है। मैं थोड़ा सा दिखा सकती हूँ, मैंने ट्राई किया है। श्योर श्योर हरिंदर। सर बट मैं कैमरा ऑन करके दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी सेटिंग में हूँ। यू हैव नो लैपटॉप? सर मैंने ना फोन, एक मिनट। हेलो सर, इज इट ओके? कैन आई शो यू लाइक दैट? यस यस यस, हाँ डन डन, बहुत बढ़िया। करिश्मा रोटेट योर द स्क्रीन। चेक नहीं कर रही थी, मैं समझ गया, चेक नहीं कर रही थी। कब पे अरेंजमेंट? यस यू आर राइट। हाँ करिश्मा, स्क्रीन इज विजिबल विजिबल विजिबल। Okay. Because I'm not sharing the screen, I'm just opening the camera, and that's Okay okay, because no issue no issue, please do it. that Karishma. one Yes, after yes. the yes. सर देखना मेरा भी, मैंने फोन से किया सर, अभी मैंने दूसरे फोन पे इसको भेज के फिर आपको दिखा रही हूँ। Manisha, Manisha already sir. shared screen. Manisha, stop your screen. Manisha, stop your screen. ओके ओके सर। हाँ करिश्मा, दोबारा कर रही हूँ सर मैं, just 1 minute sir. Once again I am doing. Okay, and after that sir we have to do select recipients okay. and existing list. I have one I prepared one existing list, and I am choosing from that side. Desktop, where is my desktop? Just 1 minute. Copy paste in somewhere, otherwise it is not visible. Please open your the document. Can I check your the document? Opening suggest.
Yes. Yes, sir, I'm opening. Yeah, that's one, sir. Name, email ID, job title, company name. Okay. Okay. I will save it first, sir. I will save this PC, and I am saving the document site. Okay, Karishma, and don't after copy that, to Karishma, don't copy to another person. ठीक है ना? Please different to another person. ठीक है ना? कुछ चलो दिखाइए, अभी दिखाइए. ये सर मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे डेस्कटॉप के ऑप्शन नहीं खुल रही. ये मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है. कॉपी वो खुल नहीं रहा था इसलिए. मेरा कॉलेज का पीसी है सर, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं खोल पा रही हूँ. जस्ट 1 मिनट सर. अच्छा. हाँ, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट. After that, browse. And after browsing, in document list is there. In document I saved button listener, new Microsoft Excel sheet. And here, okay. Yes. And that one is opening, sir. Name and company name, email and job title. Okay. And after that, sir, what I have to do? Okay, here. अब मुझे यहाँ से सपोज एक एंट्री को एडिट करना है. सपोज आई विल एडिट ओनली वन एंट्री. One entry. Yes. Sir, here edit. Tell me the process. How do the edit of your just database, your existing list? Sir, here edit recipient list is there, sir. Sir, where I have to click, sir. Okay. Krishna, please stop your writing. Okay, sir. Stop your Thank you. Stop your this. Amisha. Gurpreet Kaur. Gurpreet, I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Gurpreet, please do. सर एक्चुअली ना आज मेरा फर्स्ट डे था तो मैंने अभी मतलब मुझे थोड़ा मतलब कम समझ आया है. हाँ जी, बट मैं अभी ये जो मैम ने अभी डिस्प्ले किया ना तो थोड़ा मुझे आइडिया हो गया, तो मैं आपको ना करके मतलब नेक्स्ट डे क्लास में बता दूँ. Gurpreet, this is the minor topic. This is the very minor topic. Yes, sir. I know, but sir नहीं सर टॉपिक माइनर है, बट मैंने इम्प्लीमेंट की बात कर रही हूँ कि मैंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं ये बता रही हूँ आपको. You are PhD scholar. चलो don't. हाँ जी. Sumit, please share your screen. Sumit. I am audible. Sumit. I am audible. Vishal. नंबर सभी का आना है. आप ये हाँ फरहान. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. हाँ फरहान. सर फरहान हमेशा करता है. फरहान अगर फरहान को कॉल भी ना करे तो जस्ट फरहान एक्टिव रहता है. फरहान प्लीज डू इट. शेयर योर ओके सर, आई एम शेयरिंग. यस, फरहान इज अ वेरी एक्टिव स्कॉलर. Sir, is my screen visible? Yes, Farhan. That's good. Okay, sir. First of all, what we are going to do, start mail merge. Yes. Now we are following step-by-step procedure. So for this, start a document.
सर जैसे कि अभी आपने बताया था ना कि हम जो ये मेल मर्ज करते हैं, हाँ मैंने ऑलरेडी ना एक लिस्ट बनाया था अभी ट्राई करने के लिए। अब नया बना दूं या वही ले लूं सर? एक्चुअली एक नया बना के देखो यहीं पे सभी को, थोड़ा सा ओके सर। टाइप ए न्यू लिस्ट, ठीक है ना? I only mention of the if 5 या 4 field, not more. ओके सर, इनविटेशन फर्स्ट। Go to the new entry. Go to the new entry. Bus. Stop run. Go to the new entry. Go to the new entry. ठीक है ना? ओके सर। Yes, yes, sir. Now we are going to choose the address. Actually, there are the two way of the a create या maintain of the a participants database. ठीक है ना? Yes, जिस sir. तरह से फर्स्ट फरहान बता रहा है, गुड। Go to the insert title, good. Enter the tab. Farhan, please हाँ enter the tab. Enter Dr. GN. Cursor up. Enter. No. First field is the man. अच्छा, Dr. J. Last name. Good. Company name. Good. okay sir. Zinapur. Good. Now recipient second is Dr. Kapil Second Kumar is and Dr. third is Kumar. Dr. Pradeep. Third. Good. Farhan, good. Now is the last option is the a finish merge. Now we can Print print the document. from yeah all ही कर देंगे sir. हाँ, ठीक है ना? गुड, ठीक है ना? Mention the file name. Desktop. ठीक है ना? Good. Okay. Okay. Good. Good, Fran, stop the screen. Okay sir. Fran, stop this. Good, Fran. वैभव गुप्ता. हेलो। विमल गुप्ता बताइए. विमल. हाँ जी share your सर। this. Please share your this. सर जस्ट अ मिनट। Okay.
Sir, is my screen visible? Hello? Hello? Vimal, I am audible. Vimal, I am audible. Hello? Sir, मेरी screen दिख रही थी आपको? Was my Yes, screen yes, available? yes, visible? yes, yes, Vimal, your screen is. Okay. Up, try to again. हाँ जी। सर सबसे पहले हमने मेल मर्ज में एक वर्ड फाइल बनाई सर। इस वर्ड फाइल में व्हाट वी हैव डन इज कि एक लेटर लिखा है और इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया बर्थडे इनविटेशन का और अपने फ्रेंड्स को भेजना है ये। Yes, yes, yes. और देन आई हैव क्रिएटेड अ एक्सेल शीट जिसमें मैंने कौन कौन से फ्रेंड्स को ये लेटर भेजना है, मैंने नेम, एड्रेस और उसका पिन कोड मेंशन किया है। Good. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेल मर्ज सर। पहले मेलिंग ऑप्शन पे जाएंगे। मेलिंग ऑप्शन पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द मेल मर्ज एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल गो इनटू मेल मर्ज विजार्ड। Yes. इसमें सर फर्स्ट वाले को हम लेटर्स पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे एंड सेकंड में हमने ये करंट डॉक्यूमेंट है, वी हैव टू सिलेक्ट एंड नाउ वी विल सिलेक्ट द रेसिपिएंट्स। तो आई हैव टू ऑप्शंस, या तो जो मैंने लिस्ट बनाई है उसको मैं यूज करूंगा या फिर मैं नई लिस्ट बनाऊंगा जैसे अभी फरहान जी ने करके दिखाया था। ठीक है। तो आई यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट में सर मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, जैसे मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो वो लिस्ट मेरी जहां पे पड़ी है जो मैंने एक्सेल शीट बनाई थी मैं उसको सिलेक्ट करूंगा और इसको ओके करूंगा। ये मेरी, Yes. हाँ जी, दिस इज द सोर्स। तो सर ये वाली मेरी सारी की सारी एग्जिस्टिंग लिस्ट मेरी यहाँ पे आ गई। Good. Good. अब नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंसर्ट द मेल। Yes. इनका नाम इंसर्ट करना है, देन आई हैव टू इंसर्ट द एड्रेस एंड देन आई हैव टू इंसर्ट द जो मेरा वो लिस्ट में सेव था पिन कोड। Okay. 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 ठीक है सर। Okay. अब इसमें सर ये प्रीव्यू रिजल्ट्स करते हैं। तो इसमें ये मेरी लिस्ट आ गई जिसमें मैंने जिन जिन फ्रेंड्स को भेजना है। अब इस लिस्ट को मैं आगे करके देख सकता हूँ कि मेरी कौन कौन से फ्रेंड्स को मैंने भेजना था और उनके नाम आ गए। उसके बाद सर मैं फिनिश कर दूंगा। इन केस अगर मुझे कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो आई कैन एडिट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आई कैन एडिट द करंट डॉक्यूमेंट और उसके बाद आई विल फिनिश द मेल मर्ज। विमल So then I'll go to विमल एडिट करके देखो। Select of the one document and edit it. just a minute sir, just a minute. एडिट में सर देखना पड़ेगा मेरे को भी, भूल गया, याद नहीं आ रहा। प्रीव्यू रिजल्ट्स में आ गया। इसमें सर एडिट बताइए, मुझे दोबारा बताइए प्लीज। आप ट्राई करोगे तभी। सर मैं दोबारा चेक करके आपको दोबारा बता दूंगा। श्योर विमल, लेकिन एडिट वाला कर लीजिए विमल जी। मैं सर आज ही करूंगा इसको। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, एक मिनट विमल, स्टॉप योर स्क्रीन। हाँ जी सर। बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ कृष्ण सर मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड कर रही हूँ ना, तो जो मेरे लिस्ट में नेम है वो नहीं आ रहे हैं, एड्रेस नहीं आ रहा है। उसमें नेम के ऑप्शन सेलेक्ट करी तो वहां पे नेम ही लिखा आ रहा है, NAM नेम ही लिखा हुआ आ रहा है, मतलब पर्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं आ रहा इसके अंदर। कोई नहीं, अब जो नेम एड्रेस कोई नहीं, डोंट वरी, नहीं हो रहा सर। डोंट पैनिक। करिश्मा सर कब से कर रही हूँ please सर, नहीं हो रहा। हाँ, डोंट वरी, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। पहले स्क्रीन शेयर करो आप, फिर मैं बताता हूँ स्टेप बाय, मैं कराता हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ सर, जस्ट 1 हाँ मिनट। कोई नहीं, स्क्रीन शेयर करो आप। इसीलिए मैं करवाता हूँ, मैं इसीलिए बच्चों देख- ध्यान जितने
देखिए सर, यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड है ना, जब मैंने इसको ऐसे क्लिक किया तो ये नेम, ईमेल, जॉब टाइटल एंड कंपनी नेम मैंने अपनी लिस्ट में सिलेक्ट किया था। और अब मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए और मैं यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड नेम कर रही हूँ, तो नेम ऐसे नेम आ रहा है यहाँ पे, उस पर्सन का नेम नहीं आ रहा जो मेरी लिस्ट में था। नहीं वो तो आप, अच्छा ठीक है, आपने ये- सेलेक्ट कर लिया ये आपने? हाँ सर, मैंने वो लिस्ट आपको दिखाई थी ना, मैंने सिलेक्ट की थी, ये वाली कहाँ पे दिखाती हूँ गया? आपको, जस्ट 1 मिनट। हाँ एक बार ये सर इसमें ये इसमें ना सर वो प्रीव्यू रिजल्ट्स में आएगा, वो जो नेम ये मिस कर रहे हैं ना, वो प्रीव्यू रिजल्ट्स पे सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा उसमें। नहीं देखूं नहीं मैं अब, प्रीव्यू रिजल्ट, हाँ प्रीव्यू रिजल्ट में भी आ जाएगा अब। एक हाँ, एक बार देख, नहीं आप एंटर करो इसको एंटर कहाँ एंटर करना है सर? करिश्मा, जहाँ पे डियर है इसके नीचे एंटर मारो, एक एंटर करो। हाँ अब आप गो टू द इंसर्ट, आप उसमें जाइए, इंसर्ट हाँ में ठीक, जाइए। ओके हाँ ठीक है। अब यहाँ, हाँ सिलेक्ट, आप नेम सेलेक्ट करो, ठीक है ना? इंसर्ट कर दूं? हाँ नेम नेम करो, नेम करो करो। हाँ नेम किया ना सर यहाँ पे, हाँ उसके बाद करो अगर मैं करो। इंसर्ट करती हूँ, कर रही हूँ सर। आप हाँ सर आ गया, आ गया हो ना? गया सर, ठीक है ना? यस सर। और सर कैसे, आप हाउ हाउ ना, आपने क्या मल्टीपल टाइम, कैसे मिस्टेक यू थी? वांट टू द यूज ऑफ द मल्टीपल टाइम, ठीक है ना? एक ही टैब को आप मल्टीपल टाइम ले रहे हैं, तो मींस दैट इज द जनरेट ऑफ द ए कोरिलेशंस टू योर डॉक्यूमेंट, ठीक है ना? सर जैसे ही आपने इंसर्ट, एक नया, हाँ आपने जैसे ही नया किया ना, आपने एक नया टैब ओपन किया, आप बार बार उसे कोरिलेट कर रहे हो ना, जस्ट इज द ए कोरिलेशंस ऑफ द अकर इन योर द डॉक्यूमेंट, ठीक है? वो हो जाएगा जैसे और ही सर इसका रिफ्रेश करोगे सर। प्रीव्यू, सर इसका प्रीव्यू रिजल्ट का क्या मींस, क्या बेनिफिट है इसमें, क्यों करना है अभी हमको ये अभी प्रीव्यू रिजल्ट? अभी प्रीव्यू हमें देखना है, अगर प्रीव्यू देखना है, सपोज करो कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं, प्रीव्यू चेक करना चाह रहे हैं, किन किन पार्टिसिपेंट्स को हमने करना था, किन फ्रेंड को हमने भेजना है, ये चेक किया। ठीक है, ये भी समझ आ गया सर। फिर बस उसके बाद लास्ट में ये फिनिश एंड मर्ज है ना, दैट्स इट ना? यस 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 यस। सर वो आपने मुझसे वो पूछा था कि एडिट कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं एडिट? यहाँ पे एडिट रिसिपिएंट लिस्ट में जाकर ये लिस्ट आ गई, तो उसको एडिट अभी कैसे करना सर? हाँ एडिट करो आप उसे, अगर सपोज करो कि आप कैसे करना एडिट सर? का मतलब, हाँ आप जाइए, एक मिनट, यहाँ से एडिट नहीं होगा करिश्मा। इधर से नहीं एडिट होगा? अगर Okay. अगर सपोज करो कि अगर हमें यहाँ पे कोई भी एंट्री है एग्जिस्टिंग एंट्री में से, ठीक है ना, अगर हम कोई भी पार्टिसिपेंट्स को सपोज रिमूव करना चाहते हैं या हटाना चाह रहे हैं, वहां पे वो होगा मे बी, ठीक है ना? आई विल चेक। ओके सर, चलो मैं चलो यहाँ पे, कोई नहीं, हाँ करिश्मा थैंक यू। स्टॉप योर स्क्रीन, हाँ मैं कर रही हूँ, यस सर। ठीक है ना? कोई स्कॉलर है, एनी स्कॉलर दे वांट? नाम से बुलाना पड़ता है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तेजवीर सर, मैंने अभी आपको शो कर दिया, विमल गुप्ता है ना, और हाँ जी। सर मैं जा सकता हूँ क्लास से, अभी कुछ और करवाएंगे आप? एक्चुअली मुझे ट्रैवल करना है आज आउट ऑफ स्टेशन। नहीं नहीं आप जाइए जाइए, ठीक है वही तो सर, मुझे वो थैंक यू। बताना था, IEEE फॉर्मेट बताना था, कोई नहीं, ठीक है ना? विल हाँ डिस्कस जी, थ्रू हाँ द नेक्स्ट सेशन, ठीक है ना? ठीक है आप सर, ठीक, बिल्कुल ओके जी। ओके। तेजवीर सर एक डाउट है। हाँ बताइए। सर हमें हमें फाइनल में आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखानी है जब फाइनल एग्जाम होगा। 100%, ठीक है ना? 100%। ओके, हाँ क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर एक करेंगे हाँ, ना। ये ना जब एक्सटर्नल आपका वाइवा होगा ना, ड्यूरिंग द एक्सटर्नल वाइवा टाइम, ठीक है ना, तो एक्सटर्नल जो भी फैकल्टी होगा तो वो आपसे कराएगा, ओके, ठीक है ना? एक्सटर्नल फैकल्टी करवाएगा हमसे। ओके, those faculty are assigned to the DPT to external practical, ठीक है ना? They will perform you. तो सर हमें कुछ रिटर्न में भी लिख कर दिखाना उनको, थ्योरी की कैसे कैसे हमने स्टेप को Yes, फॉलो yes. किया, कि बस डायरेक्टली सारा उनको?
थ्योरी का भी मिलेगा आपको, एक थ्योरी जिस तरह से प्रैक्टिकल लिखते हैं ना, सेम इस तरह से थ्योरी वाला पार्ट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके सर, हाँ, क्लियर सेम सर। प्रोसेस। अभी 5 मिनट सर ये फर्स्ट नेम तो आ ही रहा है, लिखा हुआ। आफ्टर 5 मिनट वी विल स्टार्ट, ठीक है ना। वी विल स्टार्ट टू अनदर एक्सपेरिमेंट, ओके। आफ्टर 5 सर ये मिनट। नेम तो लिखा आ नहीं रहा। रितु, हाँ रितु बताइए, रितु यस क्या सर। डाउट है। हाँ रितु बताइए क्या डाउट है। सर जैसे हमने एडिट रिसिपेंट लिस्ट में सर ये लिस्ट सेलेक्ट कर ली सर, जो हाँ जी। एक्सेल में बनाई थी सर, उसके बाद फिर हम यहाँ पर शो कैसे करेंगे सर इसको? सर जैसे नेम फर्स्ट नेम कैसे एंटर करेंगे सर, वो नहीं पता लग रहा। अभी अभी लैपटॉप है। यस सर मैं कर रही हूँ सर। आप प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ओके सर। सर सर विजिबल है आपको? यस यस। सर जैसे यहाँ से ओके कर दिया ना ये लिस्ट सर। रितु योर स्क्रीन इज विजिबल बट, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या हो रहा है कि तुम्हारा प्रॉपर वी हैव नो ऑब्जर्व योर द डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। मैं आपके डॉक्यूमेंट को सीन नहीं कर पा रहा हूँ अभी प्रॉपरली। आप लैपटॉप है क्या है, स्क्रीन शेयर करो आप, जस्ट ये तो कैमरा ऑन कर रहे हो आप रितु, शेयर योर द स्क्रीन, डोंट ओपन योर कैमरा। सर अब दिख रही है? रितु आप, सर अब विजिबल है? हाँ हाँ स्क्रीन इज विजिबल। सर आई अब जैसे थिंक ये आई थिंक आप ना अपना कैमरा ओपन कर रहे हो रितु, ठीक है ना। शेयर योर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर करोगे तो जस्ट आपकी स्क्रीन ही नजर आएगी, ठीक है ना। अभी आप बार बार ना अपना कैमरा ऑन करके जस्ट अपना लैपटॉप दिखा रहे हो, तो उससे ये प्रॉपर फोकस नहीं बन पा रहा है। सर एक्चुअली ना मुझे मतलब लैपटॉप से अभी ज्वाइन नहीं करना आ रही क्लास, तो इस करके ना कोई मैं नहीं रितु, लैपटॉप में कर रही आफ्टर थी आफ्टर और क्लास, फोन से दिखा रही थी। आफ्टर क्लास वी विल डिस्कस, ठीक है ना। मैं आपको गाइड ओके करूँ, सर। ठीक है ना। शेयर स्क्रीन करना, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट वी विल स्टार्ट टू अनदर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। 5 फिल्ड किया, तो जैसे यहाँ पर ये डियर एलेक्स जॉनसन आ गया, ठीक है, एक नेम हो गया मेरा, और मान लो मैं इस सभी को फिल कर लेती हूँ, डन। अब मुझे हाँ। सेकंड फिल करना है, तो सेकंड कहाँ फिल करना है, सेम इसी शीट पर। नहीं, जैसे आपका ऊपर आ रहा है ना प्रीव्यू रिजल्ट्स के साथ में आ रहा है ना वो एरो नेक्स्ट वाला, सर कहाँ पर, ऊपर सर कहाँ जहाँ पर? जहाँ पे फाइंड कहाँ पे? रेसिपिएंट है ना, इसके ऊपर आ रहा है ना, ऊपर हाँ ऊपर ठीक स्क्रीन है, पे। हाँ। हम्म जी ना, आपका स्क्रीन पूरा विजिबल इस नहीं है। एरो को क्लिक करो। हाँ हाँ हाँ, इसी पे क्लिक करो। ओके ओके, क्लियर सर, क्लियर क्लियर। आ गया ना, ओके, अभी अब इसके सारे आ बाद जाएंगे ना यहाँ पे जो मैंने सिलेक्ट किए थे। हाँ जी हाँ जी। ओ ओके, तभी मैं सोच रही थी कि इसका बेनिफिट क्या है, अगर मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करना है तो कोई बेनिफिट नहीं। ओके, अब मुझे क्लियर हुआ, और जितने भी ये यहाँ पर हैं तो वो मुझे यहाँ से दिख जाएंगे, और क्लियर। ये जो एंड सर ये लास्ट और ये जो इसमें था ना प्रीव्यू रिजल्ट वाला, अगर इस पे आप दोबारा क्लिक करोगे ना, आप इस पे एक बार क्लिक करो प्रीव्यू रिजल्ट पे। करिश्मा, हाँ आप देखो, इस पे आ रहा है ना ये नेम करिश्मा खाली आ रहा है, इस रिपोर्ट पे आप कार्ड ये आप देखो भेजोगे हाँ। ना। कैसे एडिट करना है। करिश्मा, यस सर, करिश्मा, अभी जब हम यस सर। एमएसटी की रिपोर्ट कार्ड भेजते हैं ना, हाँ बाय सर। पोस्ट, तो वहाँ यस सबसे सर। सबसे बेनिफिशियल है, ठीक है ना।
आप मेल भी कर हाँ, सकते हो और क्योंकि सर letter मुझे भी भी बहुत भेज बेनिफिशियल लग रहा था। हम यहाँ पे कॉलेज के जब वो बच्चों को रिजल्ट भेजे थे तो मुझे लगा कि अच्छी बात है कि Yes. एक ही बार में सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ बस ठीक है ना, आज इम्प्लीमेंट कर दो अपने कॉलेज में आप। ठीक है नहीं सर, मुझे एक्साइटमेंट हो रही थी ये एक्सपेरिमेंट करने की, तो ठीक है ये मेरे ओके ये एक्सपेरिमेंट मेरे लिए फर्स्ट था। ओके फरहान सर, ये मुझे क्लियर हो गया। एक और बात बता दो, ये प्रीव्यू रिजल्ट का कोई काम है? हाँ जी, देखो कोई आपको नीचे आ रहा है हाँ ना नेम। इनकेस अगर आपको हाँ लगता है कि जैसे कि हमने कौन कौन सी एंट्रीज ली है, जैसे आपने वहां पे देखा पहले ही आपने रखा कि इनविटेशन, जैसे मैंने बनाया था वो करिश्मा इनविटेशन पेज। करिश्मा करिश्मा हाँ यस सर, यू हैव फोन। यस सर, फोन तो है ना आपके पास? आपकी डायरेक्टरी है में सर। कितने नंबर है? आपकी डायरेक्टरी में कितने नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर? होंगे सर नियर 169 या 200 के नियर अबाउट। ठीक है ना। अब सपोज करो कि आप एक्स पर्सन को कॉल करते हो, हम्म तो सेलेक्ट ऑफ द एक्स पर्सन। ठीक है ना। हम्म अगर रैंडमली सपोज करो कि एक्स पर्सन हमारे पास 3 है। ठीक है ना। हम्म एक तो हमारे पास सेव है एक्स, एक है एक्स डॉट, एक है एक्स डबल डॉट। यस तो कई बार हम स्क्रॉल करते हैं ना, कर्सर स्क्रॉल हाँ करते हैं अप डाउन। ठीक है ना। यस तो ये सेम थिंग द काइंड ऑफ द ए प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब है कि हम एक किस्म से अपना जो हमने एक अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है ना, तो उसका जस्ट यस हम सर। फाइल चेक कर रहे हैं। ठीक है ना। ये मैच कर ओके रहे हैं अपने डाटाबेस से। ठीक है ना। अपने ओके डेटाबेस से मैच कर रहे हैं कि जस्ट एंट्री इज राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग। ठीक है ना। यही ओके हम इस तरह से चेक कर रहे हैं कि नेम चेक कर रहे हैं प्रीवियस से जाके एंट्री, दिस नेम इज द राइट। ठीक है ना। इस तरह से हम ये चेक कर रहे हैं। ओके सर। और सर ये आपने कुछ ये भी बताया था सर, इसका हाईलाइट मर्ज फील्ड, इसका कुछ था? हाईलाइट ओके मींस क्लियर, दैट। हाँ ठीक है, ठीक कि है ना। जो सा मैंने एंटर किया था वो हाईलाइट हो जाएगा। यस यस। ओके, हाईलाइट ये मींस भी दैट क्लियर है सर। ध्यान, अगर लेटर में ध्यान उस पे ही जाए। कई बार हम जब लेटर सेंड करते हैं ना, कुछ पोर्शन हाईलाइट कर देते हैं, तो मींस हम्म दैट जो भी पोर्शन हम हाईलाइट करते हैं दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो उस पे एक बार हम फोकस उस पे जाता है हमारा। ठीक है ना। तो एंड इसलिए हाईलाइट। ठीक है, और ये भी बताइए सारा सर। मुझे सर क्लियर था। ये सब मुझे ठीक है। क्लियर था। और एक ये जो फिनिश और मर्ज सर, प्लीज सर, ये एडिट फिनिश एंड मर्ज में जाकर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट जब करते हैं तो इसमें आपने कुछ फ्रॉम और टू बताया था। ये फ्रॉम मींस दैट, फरहान गाइड करो इसमें। फरहान हाँ जी सर, हाँ जी सर। फरहान गाइड करो। फिर ओके मुझे ओके फिनिश सर। ये भी गाइड कर दो प्लीज। फिनिश एंड मर्ज इसका क्या बेनिफिट, मतलब मैंने इस पे क्लिक किया, उसके बाद जो ये एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है इस पे क्लिक किया, हाँ हाँ। तो इसका क्या देखिए इसमें क्या बेनिफिट था इसका? सपोज अगर आपको कोई लेटर इनविटेशन भेजना है 10 लोगों को, ठीक है, हम्म जैसे आपने अभी करा ना कि प्रीव्यू करके देख रहे हो कि सबको सबका एड्रेस आ गया, सबका नेम आ गया। ठीक है। तो इसमें अगर आपको हाँ लग रहा है कि कोई एक इंडिविजुअल है जिसका नेम में करेक्शन है, तो आप करोगे, हम्म जैसे एडिट आपको आ रहा है ना, फिर देखना है कि फ्रॉम टू, मतलब जैसे कि 1 to 10 आपको एंट्रीज टोटल है, 1 से 3 तक आपको ठीक है, 3 to 4 आपको ओके कोई एरर है, तो आप फ्रॉम 3 to 4 आप ये करोगे एडिट। खाली वो दो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं आपको एडिट करने के लिए। जैसे कि हम कहीं कभार ना प्रिंट देते हैं 100 पीडीएफ, मतलब पीडीएफ है कोई, उसमें टोटल एंट्रीज है 100, तो हम प्रिंट देते हैं हम्म फ्रॉम 1 to 20 या 20 to 30। इसी तरह यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं फ्रॉम 20, जहां तक आप नंबर फ्रॉम तो रखोगे ना, वो आप एडिट कर सकते हो यस वो सर। एंट्रीज। ओके, एंड उसके बाद हम प्रिंट दे सकते हैं, अगर मैं प्रिंट खाली दूंगी आपको तो वो वो 10 की 10 से। डॉक्यूमेंट्स ना वहाँ पे ये विजिबल हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि ओके अगर आप प्रिंट दोगे ना, खाली आप पहले 10 को भेज हम्म सकते हो, या अगर आप चाहते हो कि होल डॉक्यूमेंट होना चाहिए सेंड तो वैसे भी हम्म कर सकते हो रही, जितने भी एंट्रीज होंगे, चाहे वो 100 होंगे 200 जितने भी। ओके, अब ठीक है सर, अब क्लियर है। राइट मैं नाउ इज राइट। ये यस सर, अब क्लियर है सर। ओके प्लीज स्टॉप अब मैं दिस। सर स्टॉप, हाँ अब मैं कर रही हूँ सर स्टॉप। Schooler, we are going to discuss the next experiment. Next experiment is the
prepare the research paper of the your research field as the for IEEE format, Springer AC format. This is the very important practical, ठीक है ना? This is the very important experiment. ये मीन्स दैट यहाँ से स्टार्ट होता है कि आपका रिसर्च फील्ड, ठीक है ना? अब एनी आइडिया कितने कितने स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अभी रिसर्च पेपर राइट किया है? हाउ मेनी स्कॉलर आर ऑलरेडी इन द राइटिंग ऑफ द रिसर्च पेपर? बताइए, अभी अभी स्कॉलर्स हैं कुछ ड्यूरिंग द जस्ट योर द मास्टर डिग्री, ठीक है ना? आपने मास्टर sir. डिग्री में हाँ पब्लिश किए होंगे, ठीक है ना? अपनी मास्टर डिग्री में पब्लिश किया होगा, पब्लिकेशंस किए हैं कुछ? ओनली वन स्कॉलर रेस्पॉन्ड मी, करिश्मा। नो किसी ने भी नहीं किया? यस सर, मींस पब्लिश नहीं किया लिखा सर। था Yeah, सर, good मैंने morning, रिसर्च sir. पेपर भी लिखा था हाँ और सर सक्सेस नेशनल हुआ था। और जो ईरान, कॉलेजेस में होते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंसेस उसमें हाँ पब्लिकेशन जो हुआ है वो एप्लीकेबल है ना? हाँ यस। तो उससे नहीं अगर आपने नेशनल पेपर पब्लिश कर रखा ऑलरेडी, तो पब्लिश इज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना? या यस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस। हाँ नेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, तो मींस दैट यू हैव आइडिया ऑफ द हाउ टू राइट ऑफ द रिसर्च पेपर, ठीक है ना? इसका मतलब आपको आइडिया है कि किस तरह से लिखते हैं? Yes, sir. But- I published but- in research papers in Riyadh and Bahra Galaxy Global Institutions and one in international in Kalpa Institution. any paper are your published is the IEEE Stranger या AC format? IEEE Stranger, Not in strangers, sir. no IEEE I will check भी जो conferences थे it is firstly under listed IEEE or not. Firstly we will a little discuss. Firstly we will brief, ठीक है ना? What is the research paper and how to the write of the research paper, ठीक है ना? Okay. एक ब्रीफ हम यहाँ से दे लेते हैं, छोटा सा आइडिया। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ रिसर्च पेपर की, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। आफ्टर देन फिर हम थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्क्रीन इज विजिबल सर। हाँ, तो व्हाट इज द रिसर्च पेपर मीन्स? फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज ए रिसर्च पेपर, ठीक है ना? ए रिसर्च पेपर द इज योर द आर्टिकल इन विच यू एक्सप्लेन योर द फाइंडिंग आफ्टर एक्सप्लोरिंग योर द टॉपिक इन डेप्थ, ठीक है ना? Second point, a research paper you would include information from source such as the books, journal, conference, article, interview, and the internet sites. That you also your the own idea, knowledge, and the opinions. ठीक है ना? तो means that suppose you want to the choose of the any topic of the related to your research, ठीक है ना? आप research आप अपना कोई भी topic आप choose कर रहे हैं, तो firstly you will in the a finding you the a research area, ठीक है ना? आप रिसर्च एरिया से कुछ फाइंडिंग कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं यू, ठीक है ना? यू विल कलेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशंस। तो हमें क्या करना है कि जस्ट जितनी भी हमारे पास जो फाइंडिंग है आफ्टर एक्सप्लोरिंग, ठीक है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं? राइटिंग ऑफ द ए डिफरेंट एट्रीब्यूट, डिफरेंट कंटेंट, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च पेपर। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई टू द राइट ऑफ द रिसर्च पेपर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं क्यों, ठीक है ना? टू पुट न्यू नॉलेज टू द ए पब्लिक फॉर्मेट, टू अनाउंस टू अदर इट, टू द अदर कैन यूज इट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट इज इट improve your the skill from the multiple source, ठीक है ना? थर्ड इज इट क्रिएट ए द रिसर्च माइंडसेट। करो कि हम थर्ड पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएट इज द रिसर्च द माइंडसेट। जब लोग हम लिख नहीं, सपोज करो कि अपने टॉपिक के बारे में फाइंडिंग ही नहीं करेंगे, प्रीवियस रिसर्च नहीं हम चेक करेंगे, तब लोग हमें नहीं पता चलने का, ठीक है ना? तो हम तभी कहते हैं कि जस्ट फर्स्टली यू विल इन द मेंटेन योर ए प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू, आफ्टर देन यू विल शिफ्ट टू द योर रिसर्च फील्ड, ठीक है ना? तभी आप रिसर्च फील्ड पे शिफ्ट करोगे। ये भी प्लीज म्यूट योर द सेल्फ।
म्यूट योर सेल्फ, माइक बंद कीजिए आप किसी का माइक, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन इन द प्रमोट ऑफ द कस्टर्स, ठीक है ना। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लेगरिज्म एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज द मैटर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। जैसे हम सपोज वी वांट टू द ए राइट ऑफ द ए सम मैटर अकॉर्डिंग टू या रिलेटेड टू यू द ए रिसर्च फील्ड। अब रिसर्च फील्ड में हम लिख रहे हैं कि बहुत सारे स्कॉलर क्या होते हैं कि जैसे जीपीटी हम यूज कर रहे हैं, आफ्टर देन बहुत सारे ऐसे जो क्विक बोल्ट हम यूज कर रहे हैं, आफ्टर देन बहुत सारे हमने एक बहुत सारे सम फाइंडिंग ऑफ द ए सोर्स एंड वी विल कलेक्ट ऑफ द ए डाटा टू डिफरेंट सोर्स। हमारे पास डिफरेंट सोर्स से डाटा तो कलेक्ट कर लिया हमने, आफ्टर देन फिर हम क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने और ये कह दिया कि ये हमारी रिसर्च है। दिस इज द नॉट रिसर्च, दिस इज नॉट द एक्चुअल रिसर्च, वो एक्चुअल रिसर्च नहीं है, ठीक है ना। जब लोग इसने ये कहा था कि थर्ड पॉइंट, इट क्रिएट इन द रिसर्च माइंडसेट, it creates a research mindset. Mindset means that every time when you the write of the is some literature to related you the research topic, तो आप अपनी जितनी भी आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च लिख रहे हो, तो उससे आप ये देखिए कि प्रीवियस रिसर्च आफ्टर देन यू विल इंक्लूड टू द ए न्यू राइटिंग स्क्रिप्ट, ठीक है ना, रिलेटेड टू योर द ए टॉपिक रिलेटेड टू योर द रिसर्च, दिस इज द एक्चुअल रिसर्च, ठीक है ना। तभी हम ये कहते हैं कि हमने जस्ट एक फाइंडिंग कर लिया, एक लिटरेचर रिव्यू का फाइंडिंग कर लिया, ठीक है ना। अब प्लेगरिज्म का मेन एजेंडा क्या होता है कि प्लेगरिज्म, मैंने आपको फर्स्ट में भी बताया था कि प्लैग फ्री डाटा, प्लैग फ्री, हाउ टू द प्लैग फ्री डाटा या ड्यूरिंग द ए राइटिंग टाइम, तो ओवर डाटा इज द ए प्लैग फ्री और नॉट, मेन कंसर्न दैट कि हमारे डाटा प्लैग फ्री होना चाहिए, नहीं होना है। जब लोग हम अपना एक राइटिंग प्रोसेस नहीं करने के, सेल्फ राइटिंग नहीं करने के अपनी लैंग्वेज में जस्ट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू रिसर्च एरिया, तब तक हमारा डाटा प्लैग फ्री नहीं हो जाएगा। फिर तो बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं हमारे पास, फिर हम वो सोर्स यूज करते हैं, जैसे जस्ट लाइक ऑफ द क्विक बोर्ड, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे हमारे टूल्स हैं, फिर उन टूल को हम एआई फ्री करते हैं, आफ्टर देन प्लैग फ्री करते हैं, ठीक है ना। एंड सेकंड इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ द मैटर। आपने कहीं डाटा जो आपने सोर्स, जिस सोर्स से कलेक्ट डाटा किया है, उस डाटा का आप यूज तो कर रहे हैं बट विदाउट साइटेशंस, मींस दैट दिस इज नॉट एथिकल, वो एथिकल नहीं है, तो मींस दैट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मैटर। यानी ड्यूरिंग द ए मेंशन ऑफ द ए डाटा व्हेन वी राइट ऑफ द योर रिसर्च, तो मींस दैट you will mention already cite those are the data are related to you the a field in the mention in the different source। आपने जिस डिफरेंट सोर्स से भी डाटा आपने मेंशन कर रखा है, तो वो मेंशन वहां पे उसकी साइटेशंस कीजिए, मींस दैट दिस इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट इज द इम्प्रूव द राइटिंग स्किल, ठीक है ना। जितनी बार आप लिखोगे अपने रिसर्च एरिया से, जितनी बार आप अपना एक फाइंडिंग है, सपोज करो लिटरेचर रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू देख के आपको मैटर है, आपके माइंड में जो भी आया, कंसेप्ट आया, आप फ्रीली टाइम है, आपके माइंड में आया कि इस तरह का ये एल्गोरिथम फिट होना चाहिए, इस एल्गोरिथम को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो बार बार आप लिख रहे हो, मीन्स दैट कॉपी पेस्ट, अवॉइड द ए कॉपी पेस्ट ऑफ योर द, ठीक है ना, डाटा ड्यूरिंग द राइटिंग टाइम। अगर आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे जस्ट भाई एक रिव्यू पेपर निकालना है, ठीक है ना, अब मुझे एक रिव्यू पेपर निकालना है, वी वांट टू द ए जस्ट पब्लिश ऑफ द ए रिव्यू पेपर टू रिलेटेड और रिसर्च, ठीक है ना। अब उसमें रिव्यू पेपर निकालने के लिए सबसे फर्स्टली तो यू विल द ए शिफ्ट टू, आप बहुत सारा एक डाटा कलेक्ट कीजिए और उस डाटा को आप अच्छे से पढ़िए, यू विल राइट ऑफ द केयरफुली, ठीक है ना, उसकी समझिए, आफ्टर देन द एक फाइंडिंग निकालिए, और फाइंडिंग निकालने पे जस्ट आप उससे एक लिखना शुरू कर दीजिए अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज द मोर पॉइंट ऑफ द हायर स्टडी लाइक एमएस, ठीक है ना, आफ्टर देन एमटेक में पब्लिकेशंस
करते ही हैं ऑलरेडी, बट डिफरेंट हमारे पास रूल्स हैं। डिफरेंट ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कुछ यूनिवर्सिटी में IEEE पेपर एक्सेप्ट करते हैं ड्यूरिंग द PG टाइम, ठीक है ना, मास्टर डिग्री टाइम। कुछ पेपर में हमारे पास जब भी बहुत सारे स्कॉलर ने टोल्ड मी आफ्टर देन कि उन्होंने पब्लिश तो किया है बट एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर दिया, ठीक है ना। तो दिस पेपर इज नॉट इन द रिफ्लेक्ट ऑफ द ए स्कोपस, only this paper are the a reflective of the a Google scholars, just like of the Google scholar. तो these are paper not is the a valid paper, ठीक है ना। आपको जो भी पेपर आपको लिखने हैं, जो भी पेपर पब्लिश करने हैं, दिस इज द ऑल पेपर आर, आपके सभी पेपर आपको पब्लिश कराने हैं स्कोपस डाटाबेस पे। मींस दैट दिस इज द ए मैंडेट हमारे पास। हमारी जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी इज द सेइंग दैट यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया है हमारे पास 2 कॉन्फ्रेंस 1 जर्नल, तो ऑल पेपर, ठीक है ना, इज पब्लिश्ड इन स्कोपस डाटाबेस में तुम्हारे पेपर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने कोई भी पेपर आपने पब्लिश कर लिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बट ठीक है ना, दोज कॉन्फ्रेंस आर नॉट रिलेटेड टू द योर डाटाबेस टू स्कोपस। उनका एक डाटाबेस स्कोपस में है ही नहीं, डाटाबेस वो स्कोपस में पेपर नहीं आते हैं, तो मींस दैट योर पेपर इज द रिजेक्शन इन योर पेपर। तो मैटर दैट, ठीक, व्हेन वी द राइट, जब भी आप अपना पेपर एक किस्म से राइट कर रहे हैं तो ये राइट कीजिए कि मींस दैट एक ब्लैक फ्री पेपर हो, अच्छा पेपर हो, पेपर की क्वालिटी अच्छा हो। आफ्टर देन आपके पेपर की क्वालिटी होने के साथ साथ आप IEEE या स्प्रिंजर की कॉन्फ्रेंस यूज करें ओनली, ठीक है ना, ओनली यूज ऑफ द स्प्रिंजर कॉन्फ्रेंस। ओके, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट गेटिंग? यस सर। ठीक है ना। यस सर। आप अपना माइंड सेट करना है, आपको कोई भी विदाउट स्कोपस से नहीं पेपर कराने हैं, ठीक है ना। और मींस दैट जितने भी IEEE की हमारे पास कॉन्फ्रेंस होती है, स्प्रिंजर की कॉन्फ्रेंस होते हैं, सभी क्या होते हैं उनके डाटाबेस, फाइनली these conference are the maintain the final database to Scopus database, उनका सभी का Scopus database होता है, ठीक है ना। तो अपना आप जितनी भी अपनी रिसर्च के आपको पेपर पब्लिश करने हैं, और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी हैव द जस्ट क्राइटेरिया ऑफ द 2 जस्ट कॉन्फ्रेंस एंड द 1 जर्नल। आप जितने भी पेपर आप निकाल सकते हो, जितने पेपर निकालोगे उतनी ही एक्यूरेसी आएगी आपकी रिसर्च के अंदर, ठीक है ना। यू हैव द चूज ऑफ द अकॉर्डिंग टू द 4 ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो मींस दैट एटलीस्ट 6 या 7 पेपर इन द फाइनली यू विल पब्लिश। तो दिस इज द मेन एंड, ठीक है ना। हाउ टू स्टार्ट रिसर्च योर द टॉपिक, researching your the topic, focus your the research of the narrow topic. Narrow means that this is the not main agenda of the selective of the narrow topic. This is according to the discuss your the supervisor, according to your just आपका जो भी माइंड सेट हो रहा है कि मेरा ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू योर द माइंड सेट, अभी मेरा ये फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अब मैं यहाँ पे शिफ्ट होऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप। सेकंड पॉइंट, सर्च फॉर द credible of the source online and the it is library, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे, रिसेंट जर्नल इश्यू एंड द रिसेंट कॉन्फ्रेंस ऑन द टॉपिक, जो मैंने अभी डिस्कस किया है, जो ठीक है ना, जो लिटरेचर सर्वे होगा आपको, रिसेंट जर्नल इश्यू एंड रिसेंट कॉन्फ्रेंस ऑन द टॉपिक होना चाहिए। कम अप विद ए टॉपिक, ठीक है ना। अब टॉपिक है बेसिकली, अब टॉपिक ड्राफ्टिंग योर द इजी, क्रिएटिंग एन आउटलाइन टू द मैप आउट योर पेपर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। सपोज व्हेन यू द राइट ऑफ द रिसर्च पेपर, तो यू विल सेलेक्ट योर द ड्राफ्टिंग योर द पेपर। फर्स्टली आप उसके एक ड्राफ्टिंग के एक आउटलाइन बनाइए आप उस पेपर की, ठीक है ना। एक उसका एक जस्ट एक जनरल यू विल क्रिएट ऑफ द प्रोटोटाइप बिफोर द स्टार्ट ऑफ राइटिंग योर द पेपर, ठीक है ना।
पेपर से लिखने से पहले you will create of the a drafting, या you will create of the outline of the paper. This is the important part. हम स्टार्ट कर देते हैं, कॉपी पेज से स्टार्ट कर देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि पेपर में लिख रहे हैं क्या। अब जब फाइनल हम पेपर बनता है, सुपरवाइजर के पास जाते हैं, सुपरवाइजर पढ़ता है कि रिजेक्शन, ठीक है ना। आप जब लो आउटलाइन या उसका प्रोटोटाइप नहीं बनाने के बिफोर द राइटिंग, आफ्टर फाइनली सपोज करो कि यू विल जस्ट क्रिएट a final outline you the a paper, या fine drafting you the a paper, prototype your paper. After you will shift to next step, you will shift to the a writing you the a paper. उससे क्या होगा कि एक्यूरेसी आपको मीन्स दैट फर्स्टली यू विल डिस्कस टू द ए प्रोटोटाइप यूर द ए पेपर यूर सुपरवाइजर। आप अपने सुपरवाइजर से सबसे पहले आप अपने प्रोटोटाइप पर डिस्कस कीजिए, ये आउटलाइन है। सपोज करो यू वांट टू द राइट ऑफ द ए सर्वे पेपर, एक सर्वे पेपर लिखना चाह रहे हैं, तो मीन्स दैट आप सर्वे पेपर का क्या, सर्वे पेपर इस तरह का हमें एक मैटर ऐड करना है सर्वे पेपर में, तो मीन्स दैट उसकी आउटलाइन बनाओ और अपने सुपरवाइजर से डिस्कस करो कि मुझे ये सर्वे पेपर में ये मेंशन करना है, ठीक है ना, ये मेंशन करना है मुझे सर्वे पेपर के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपने सर्वे पेपर बनाया, अगर हमने कहीं डाउनलोड बहुत सारे पेपर डाउनलोड कर लिए हैं सर्वे पेपर के अकॉर्डिंग, आफ्टर देन वी विल स्टार्ट टू द ए राइट, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लिखना हमने स्टार्ट कर दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। आप जब अपने गाइड के पास गए, आफ्टर देन योर पेपर इज द रिजेक्शन, क्योंकि गाइड क्या कहना चाह रहा है, एक गाइड एक अलग उसे व्यू में जस्ट एक सर्वे को जस्ट एक आपकी फाइंडिंग है उसे अलग वे से पब्लिश कराना चाह रहा है, दिस द मैटर विल बी द डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये है सेकंड, बिल्ड यूर द ए आर्गुमेंट इन द ए बॉडी ऑफ द पैराग्राफ्स, समराइज यूर द ए argument in the a conclusions. This is the main point of drafting your the easy, yeah, drafting before writing your, when you the draft your the a paper, summarize your arguments in the a conclusions and after then build your the argument in the a body of the paragraphs, ठीक है ना। वो मैंने जो आपको फाइनली चीज बताई है, फाइनल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है ना, उससे पहले हमें ये कर लेनी चाहिए। अब revising your the paper, revising your the paper, revising your the paper means that ensure your paper is the well organized in the include, ठीक है ना, transactions, cut out of the unnecessary word of the a sentence, use simple present past future tense as per contents, ठीक है ना। कई बार हम यूज कर लेते हैं इज आर का, हम यूज कर रहे हैं बहुत सारे पेपर में देखता हूँ, बहुत सारे स्कूल लिखते हैं इज आर, हम इस तरह से यूज कर रहे हैं, तो अवॉइड दैट, ठीक है ना, उनसे बचो। प्री ऑफर्ड फॉर द स्पेलिंग, ग्रामेटिकल एंड द ए फॉर्मेटिंग एरर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सपोज करो कि आप अपना यू विल शिफ्ट टू द पब्लिश ऑफ IEEE कॉन्फ्रेंस, तो आपके पास वो उस तरह का पेपर लगाना चाहिए कि हाँ ये पेपर मेरा पब्लिश हो जाए आफ्टर देन, इस तरह की उसमें ग्रामेटिकल है, स्पेलिंग है, फॉर्मेटिंग है आफ्टर देन, ठीक है ना। ये सारी मैटर करता है, सारी चीज मैटर, सभी चीज मैटर करता है कि किस तरह का आपने पेपर लिखा है। आफ्टर देन आस्क योर फ्रेंड, रिलेटिव टू टीचर टू रीड योर द वर्क बिफोर यू सबमिट इट। मैंने आपको पहले डिस्कस कर रहा कि आप सबमिट करने से पहले, राइटिंग करने से पहले आप अपने फ्रेंड या जो भी आपके रिलेटिव हैं, या सपोज करो कि आप रिलेटिव ये छोड़ दो, आपको असाइंड सुपरवाइजर है, यू विल डिस्कस टू एनी टाइम आप उनसे डिस्कस करो कि मुझे बताइए फॉर्मेट बताइए, इस तरह से बताइए आप कहाँ पब्लिश करना है, इस तरह से है, क्योंकि आपको एक सुपरवाइजर अलॉटमेंट है, ठीक है ना। उनसे डिस्कस कीजिए क्या फॉर्मेटिंग होना चाहिए हमारे पास, किसका हम किस तरह की हमने एक आउटलाइन बनाई है, उस आउटलाइन पे काम कर लेना चाहिए, ठीक है ना। आफ्टर सम बिफोर आप क्या कर रहे हैं, बिफोर चेक योर द ए पेपर, ग्रामेटिकल चेक योर द
पेपर, ठीक है ना। अब आप जैसे ही अपना पेपर आप सबमिट करने जा रहे हैं, कम्युनिकेट करने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में, मीन्स दैट, ठीक है ना, यू विल चेक टू द ग्रामेटिकल, ठीक है ना। और ग्रामेटिकल टूल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप खुद लिख रहे हो तो मीन्स दैट मुझे नहीं लगता है कि ग्रामेटिकल आ जाएगा, आपको टूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। ग्रामेटिकल उनके लिए होता है कि जस्ट उनके लिए यूज करते हैं ग्रामेटिकल जहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, मैटर उठा रहे हैं। अगर हम खुद लिख रहे हैं, जस्ट हम लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, मे बी हो सकता है कि बहुत टफ है ये, लेकिन जब एक किस्म से आपको पता चल जाएगा कि बहुत आपकी एक किस्म से जब फ्लैग फ्री पेपर होगा, तब आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ इट इज गुड आइडिया, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हमें ओके सेल्फ सर। राइट करना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी लिख के देखो, आप लिखने पे आप अपने सपोज करो कि एक पैराग्राफ अपनी रिसर्च से रिलेटेड, एक पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट एक राइटिंग होता है पैराग्राफ, एक पैराग्राफ राइट करो, उसका एक प्लैग चेक करवाओ पैराग्राफ का। अब उसमें देखो कि कितना परसेंट प्लैग है, सपोज करो कि उसमें 2% या 3% या 4% प्लैग है, तो मीन्स दैट यू आर द सेटिस्फाई। इसका मतलब है कि हाँ अब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरा प्लैग, यानी बिलो 10% आपका प्लैग होना चाहिए, ओके ठीक है ना। हाँ ओके, ओके ठीक है ना। फर्दर वी विल डिस्कस टू द नेक्स्ट सेशन, ठीक है ना। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। Can we leave the class?